Hi guys, my name is Shreya. Welcome back to my YouTube channel. I hope all my viewers are doing great, guys. So as you all must have seen from title itself, guys, that in this video I'm going to share with you all my own experience of using a face pack which I have been using for like a long time now. It's been now like more than 4 months I have been using this particular product, and this is none other than Nykaa Clay It Cool Oil Control Clay Mask. And this is what I'm talking about. जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा. I have used Nykaa Clay Mask previously also, guys. I have used their acne वाला variant जो था blue color का. And I also have a detailed review on that particular face pack. If you want to check out, if you want to know in detail about that particular face mask, I'll leave it in the description box below. तो आप चाहो अगर आपको वो वाला acne वाला वो blue वाला variant लेना है तो आप एक बार उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं if you want. और अगर आपने ये वीडियो इसी प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए खोला है, then we shall continue with this product. Now guys, talking about this particular mask, पहली बात ये एक clay mask है as it is written over here. Talking about its price, guys, this 100-gram jar is for rupees 599. As we are discussing about price over here, guys, I don't know whether I'm right or not, but I feel like Nykaa products are getting expensive day by day. Maybe I'm right or wrong, I don't know, but I feel so on my part that Nykaa products are getting expensive. I don't know the exact reason behind this, but yeah, Nykaa products are getting expensive. Okay, now without debating much, let us just stick to this particular review. Guys, talking about the active ingredient of this particular face mask, the first two active ingredients of this particular face mask are kaolin and bentonite clay. As we all know, guys, कि kaolin और bentonite दोनों ही जो ये clay होती हैं, they work as a natural exfoliator for our skin और they also help to detoxify our skin. तो अगर आपके skin में कोई भी toxins accumulate होते हैं या किसी भी तरीके के आपका जो dead skin cell है वो accumulate होते हैं, तो bentonite और kaolin दोनों ही ये जो clay होता है, जो इनका एक mixture होता है, वो हमारे skin को बहुत अच्छे से exfoliate करता है, हमारे dead skin cells को remove करता है, हमारे skin के जो pores होते हैं उनको जाकर के detoxify करता है, या फिर आम भाषा में बोले तो हमारे पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस मास्क इज सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड का तो मेन पर्पस ही होता है कि हमारे जो भी क्लॉग्ड पोर्स हैं, यानी जो हमारे चेहरे के पोर्स जो बंद हो चुके हैं उनको जाकर के वो खोलता है, उनको जाकर के वो क्लीन करता है. तो ये सैलिसिलिक एसिड का एक फंक्शन है. नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसके विलो बार्क और फेनल सीड्स. दोनों ही आपके डेड स्किन सेल को रिमूव करके आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करते हैं. गाइस, जैसे कि हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर फेस मास्क है या जो क्ले मास्क है, ये है ही ऑयल कंट्रोल क्ले मास्क. और ऑयल कंट्रोल आपके फेस का तभी होता है जो आपके जो पोर्स हैं वो ढंग से क्लीन हो, और ऑयल आपके फेस का हमेशा तभी बैलेंस हो पाता है गाइस जब आपके पोर्स डीपली क्लेंस होते हैं. अगर आपके पोर्स डीपली क्लेंस है तो आपके फेस का जो ऑयल प्रोडक्शन है या जो ऑयल बैलेंस है आपके फेस का, वो हमेशा मेंटेन रहता है. नाउ लेट मी शो यू द प्रोडक्ट. दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज. जस्ट लुक एट दिस. ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट है. लेट मी शो यू इट्स कंसिस्टेंसी टू यू ऑल. ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं. ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी है और ऐसा ये दिखता है. ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही ज्यादा थिक फॉर्मूला है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये इसका जार है. आई फील लाइक कि जो जार है, जो अमाउंट है इसका, वो काफी अच्छा है. मतलब 599 में आई फील की क्वांटिटी तो जो दे रखी है इन्होंने बहुत अच्छी दे रखी है. द क्वांटिटी इज quite good and the product is this, you all can see. Talking about this fragrance, because face pack में फ्रेग्रेंस का मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज फेस पैक एक ऐसी चीज है जो आप कम से कम 10 मिनट के चेहरे पे लगाते हैं, और उसमें अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हो, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस हो, तो बहुत ज्यादा कभी कभी तो बहुत ज्यादा नॉजिएटिंग हो जाती है. इसमें ऐसी कोई भी बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. इवन मुझे तो इसमें कोई फ्रेग्रेंस फील ही नहीं होती है. तो ये भी एक टाइप का मेरे लिए तो डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज आई फील कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की फ्रेग्रेंस तो हमेशा फेस पैक में होनी ही चाहिए. उसी से आपको फील होता है कि हाँ, द प्रोडक्ट्स आर वर्किंग. ओके, बिकॉज जहां आपके इसमें इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, तो एक नेचुरल फ्रेग्रेंस तो इसमें होनी चाहिए थी. आर्टिफिशियल नहीं होती बट नेचुरल होनी चाहिए थी, एंड दैट इज नॉट एट ऑल ओवर हियर. इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है रबर के टाइप की, विच आई फील जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. सो फर्स्ट थिंग जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई वो है इसकी फ्रेग्रेंस. सेकंड थिंग जिसने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है इसका टेक्सचर. जैसे कि आप लोग क्लियरली खुद देख सकते हैं गाइस, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा थिक है. एक बार मैं आपको फिर दिखाती हूँ. ये देखिए, ये है, ठीक है, ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस. ये इसका टेक्सचर है और ये बहुत ज्यादा थिक है. आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको फिंगर से स्प्रेड कर रही हूँ तो भी ये इवनली स्प्रेड नहीं हो रहा है एक बार में. तो अगर मैं इसको किसी भी एप्लीकेटर या ब्रश से, तो मैं इसको लगा ही नहीं सकती हूँ. ब्रश से लगाना तो उसको इम्पॉसिबल है. अगर मैं इसे किसी स्पैचुला या किसी एप्लीकेटर से लगाऊं तब जाकर के ये ढंग से थोड़ा बहुत स्प्रेड होगा. तो सेकेंड थिंग विच आई डिडंट लाइक अबाउट इट इज इट्स
टेक्सचर बहुत ज्यादा थिक है, अनईजी टू यूज है। आप लगा लोगे तो एकदम से सूख जाता है, क्योंकि जब इतना ज्यादा थिक फॉर्मूला होता है तो लगाते ही आपकी स्किन में एकदम सूख जाता है, और एकदम सूखता है तो वो ढंग से वर्क नहीं करता है कभी स्किन में। स्किन में कोई चीज तभी वर्क करती है जब वो आपकी स्किन में कम से कम थोड़ा टाइम रहती है, आपकी स्किन के अंदर जब वो सीप होती है, जब आपकी स्किन के पोर्स में जाती है, तभी वो चीज आपकी स्किन में काम करती है। और इतना ज्यादा थिक फॉर्मूला कभी भी आपके स्किन के अंदर सीप नहीं कर सकता है, तो उसका काम करना ऑब्वियसली यहीं से आपका कम हो जाता है। थर्ड थिंग विच आई डेंट लाइक इज दैट कि इसमें कोई भी एप्लीकेटर नहीं मिलता है। वो तो खैर नायका के किसी फेस मास्क में नहीं मिलता है, जो मैंने पहले ब्लू वाला लिया था उसमें भी नहीं मिला था। तो ये चीज भी मुझे पसंद नहीं है कि एटलीस्ट जब कोई इंसान 600 रुपए का आपका फेस पैक ले रहा है तो एक एप्लीकेटर दे दो उससे, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान कहीं जा रहा हो, कहीं ट्रेवल कर रहा हो, उसने तब ये परचेज किया हो, तो एक एप्लीकेटर आई फील लाइक कि हमेशा फेस पैक के साथ प्रोवाइड करना चाहिए। द वे मामा अर्थ डू, वो हमेशा अपने हर फेस मास्क के साथ जरूर एक एप्लीकेटर हमेशा भेजते हैं। तो ये चीज आई थिंक इज लैगिंग इन दिस ब्रांड, विच इज ऑल्सो नॉट गुड। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और डेप्थ में बताऊं आपको, मुझे अच्छी चीज लगी इस फेस पैक के बारे में, ये है कि इसमें कोई सल्फेट नहीं है, कोई पैराबेन नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है। ये चीज बहुत अच्छी है। ये वीगन प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी ग्रेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल थिंग कि ये फेस मास्क काम करता भी है या नहीं। गाइस, अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बता दी उससे आप कहीं ना कहीं खुद ही एक कंक्लूजन में पहुंच गए होगे, बट स्टिल लेट मी कम टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। गाइस, स्किन केयर एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, ओके। हो सकता है द थिंग विच वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू, और विच हैव वर्कड वेरी वेल फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर मी, ओके। इट इज एक्सट्रीमली वेरी सब्जेक्टिव। स्टिल जब हम किसी प्रोडक्ट को एटलीस्ट 4-5 बार यूज कर लेते हैं, देन वी डेफिनेटली कम टू नो कि द प्रोडक्ट इज वर्किंग और नॉट, ओके। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस मास्क, गाइस, the purpose of this face mask, as they have written, is oil control clay mask. I have oily skin, I have acne prone skin, okay, and मेरे लिए तो इसने ऑयल कहीं से कहीं कंट्रोल नहीं किया। I have been using this particular face mask religiously for good 3 to 4 months, okay. हर हफ्ते I use this, every week I use this, because I don't want to come to a conclusion all of a sudden regarding any face product, regarding any face mask, or regarding any skincare product. Weekly I have been using it, okay, but it did nothing. It really did nothing, guys. ना ये मेरी स्किन को क्लीन कर पाया, ना ये मेरे ऑयल को बैलेंस करता है, ना ये मेरी स्किन को रिफ्रेशन अप करता है। आई रियली जस्ट कांट फाइंड आउट द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस मास्क। मुझे नहीं समझ आया अभी तक कि इसका काम है क्या। या तो ये मेरी स्किन को रिफ्रेशन अप करता तो आई वुड हैव सेड कि हाँ ये रेजुविनेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं करता है। अगर ये मेरी स्किन को डीप क्लेंस करता तो मुझे लगता है कि हाँ ये डिटॉक्सिफाइंग है, ये ऐसा नहीं करता है। और जो मेन पर्पस इसका है दैट इज फॉर ऑयली स्किन, तो ये मेरे स्किन के ऑयल को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करता है, मेरी स्किन को बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाया। सो फॉर मी दिस इज अ हाईली डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट। मतलब मुझे कोई पर्पज ही नहीं लगा इस फेस पैक के लिए 599, मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपए देने का। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं कहूंगी कि आप एक काम कीजिए, अयूर का वो 30-35 रुपीज का कुछ फेस मास्क आता है पाउडर वाला, मतलब कुछ पाउडर वाला फेस पैक आता है, वो खरीद लीजिए। उसके साथ एक गुलाब जल खरीद लीजिए, ठीक है। 100 रुपए के अंदर आपका अच्छा खासा फेस पैक तैयार हो जाएगा, अगर आपकी स्किन ऑयली है और एक्सेसिव ऑयल ही आपका कंसर्न है। आई रियली डोंट नो गाइज फॉर व्हाट दिस पर्टिकुलर ब्रांड इज चार्जिंग ₹599 फॉर दिस पर्टिकुलर फेस पैक। मेरे रियली समझ नहीं आया कि मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपए मैंने इस फेस पैक किस चीज के लिए दिए। तो सच में सिर्फ ऑयली स्किन के लिए कुछ चाहिए तो आप सिंपल एक मुल्तानी मिट्टी खरीद लीजिए, बट इसको तो बिल्कुल मत खरीदिए। फॉर मी दिस केम आउट टू बी एन अटर डिसअपॉइंटमेंट गाइज। आई फील लाइक ये किसी भी यूज, मेरे लिए तो ये किसी भी यूज का नहीं रहा। हो सकता है आपके लिए काम किया हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए नहीं किया तो किसी के लिए नहीं करेगा, बट मेरे लिए तो नहीं किया है। सो yeah, that was my honest opinion on this particular face mask. I hope you people liked it. If you did and if you found this video anyhow helpful, then please like this video. Do consider subscribing to my channel if you have not yet. And yeah, keep coming back to my YouTube channel for further such videos, guys. Until next, take care of yourself. Bye bye.